Hello, good morning students. So welcome back on my YouTube channel Math Mentor. So today I am going to start the next MCQ of the topic indefinite integration. In some previous video lecture we completed first 115 MCQs of this topic indefinite integration. Okay, so today let's start from the next MCQ, that is 116. So look at the example number 116. So 116, that is what? Tan raised to mx tan raised to mx divided by sin x into cos x. So for particular this example, try to check the answers, the options A, B, C, D. In all there is a tan. It means we have to substitute tan x is equal to t. So there should be sec square x is the derivative of tan x. So that's why divide on both sides by sec square cos x. Cos square x, divide on both sides by cos square x. Why? Because 1 upon cos square x is what? Sec square x. So we need the term sec square x because the derivative of tan x is what? Sec square x. So that's why we divide on both sides by cos square x. 1 by cos square x is sec square x. This cos x and this cos x get cancelled. So numerator tan x, tan raised to mx, divided by sin by cos x is tan x into sec square x dx. ये -1 ऊपर पावर tan raised to m-1 x into sec square x बनेगा. So this is f of x, f dash of x, and this is n. So f of x raised to n plus 1 upon n plus 1. So tan raised to m-1 plus 1 divided by m-1 plus 1 plus c. So this is answer. It means what? Only tan raised to mx divided by m plus c. So this is answer of 116. Is it clear? Very simple, but judgment is what? We have to divide on both sides by cos square x. Why? Because there should be a sec square x. हर ऑप्शन में tan की टर्म है, बस हमें पुट करना है tan x इज इक्वल टू t. इज इट क्लियर? सो दिस इज 116. नाउ 117. sec x log of sec x plus tan x dx. सो इसका इंटीग्रेशन है. व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ sec x? log of sec x plus tan x, that is the integration of sec x. So this is f of x, this is f dash of x. So f of x, why this f of x? Because this is a derivative, means sec x का इंटीग्रेशन क्या है? log of sec x plus tan x, means log of sec x plus tan x का डेरिवेटिव क्या बनेगा? sec x. So f of x, f dash of x, what is answer? log of sec x plus tan x whole square by 2 plus single line solution. Okay, so this is the answer. Option is C. इसका option D था. This is option D. This is option C. Okay, so after completion of 117, what will be 118? So this is tan x divided by log of cos x. So this worksheet is very fantastic, very important, because every example is different level, every example is twisted, some different logic is there, not similar type of examples, not textbook type of examples. Okay, so this is absolutely MST CET level and JEE main level examples. So tan x log of cos x. What is the derivative of log of cos x? 1 upon cos x into minus sin x. 1 upon cos x into minus sin x is what? Minus tan x. So डिनोमिनेटर के ऊपर डेरिवेटिव सिर्फ माइनस की जरूरत है वहाँ पर. So f of x e f dash of x. So minus log of f of x, log of cos x plus c. So this is answer 180.
f dash of x upon f of x, log of f of x plus c. But why minus sign? Because the derivative of log of cos x is 1 upon cos x into minus sin x. So minus sin x upon cos x is what? Minus tan x. So that's why minus log of cos x plus c. So this is the answer. So option is what again? C. Okay, so this is the completion of 116, 17 and 18. Okay, now 19, 20 back to back. I hope you understand this. अगर आपको एग्जाम्पल समझ में आ रहा है, आपको हर सॉल्यूशन अंडरस्टैंड हो रहा है, तो काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक द वीडियो, कमेंट द वीडियो. So look at the example number 19. Example number 119. Integration 1 upon sin x into under root sin x into cos x, root sin x into cos x. बहुत सारे एग्जाम्पल इस लेवल के हुए. सो इसका जजमेंट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द ऑप्शंस. सो देखो 3 ऑप्शन में उन्होंने रूट कॉट एक्स है. सो डेफिनेटली कॉट एक्स हमें टी पुट करना है. सो दैट्स वाई यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स बाहर ले लो. नहीं तो साइन एक्स से डिवाइड करो. साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स बाहर लेने के बाद साइन एक्स बन जाएंगे. इट इज साइन स्क्वायर एक्स अंडर. साइन स्क्वायर एक्स बाहर लिया तो कॉस बाय साइन एक्स बनेगा. कॉस एक्स बाय साइन एक्स डी एक्स. सो 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स इज कोसेक स्क्वायर एक्स. वेरी सिंपल. डिवाइडेड बाय अंडर रूट कॉट एक्स. So this is f dash of x, this is root f of x. F dash of x upon root f of x is 2 root f of x. 2 root f of x plus c. But cot x का due to minus cosec square x है. So minus sign. So this is answer 119. दो ही लाइन में है. So this is about 119. So let's start 120. So 120 example क्या है? 1 upon 2 plus cos 2x. So this is a textbook level example. बहुत कम एग्जाम्पल इस वर्कशीट में टेक्स्ट बुक लेवल के. हर ऐसे एक भी एग्जाम्पल आपको टेक्स्ट बुक में दिखेंगे नहीं. सो ऑल एक्सरसाइज में ऐसे एक भी एग्जाम्पल नहीं है. सो MST CET में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जहाँ पर कुछ ना कुछ अलग लेवल का लॉजिक है, कुछ ना कुछ अलग लेवल की थिंकिंग है. ये तो कॉमन एग्जाम्पल है. इट इज़ अ स्टैंडर्ड मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन. 1 upon a plus b cos 2x, 1 upon a plus b sin 2x, 1 upon a plus b cos 2x plus c sin 2x. That time we have to put tan x is equal to t. So it's very simple. Put tan x is equal to t. cos 2x है. हाँ, dx की वैल्यू dt upon 1 plus t square. dt upon 1 plus t square. This is dx. 2 plus cos 2x means 1 minus t square upon 1 plus t square. After cross multiplication, 2 into 1 2 plus 2t square plus 1 minus t square. This 1 plus t square, 1 plus t square cancel, but after cross multiplication. So this is integration dt divided by 2 plus 1 3. 2t square minus t square is minus t square. This implies dt divided by root 3 square minus t square. Root 3 square minus t square. So 1 upon a square minus x square. What is formula? 1 by 2a log of a plus x root 3 plus t root 3 minus t. T is tan x. T is tan x. These are the some standard substitutions. ये standard substitution है. Put tan x is equal to t. Proper form method क्या is what? 1 upon a plus b cos 2x. So that time we have to put tan x is equal to t. dx is equal to dt upon 1 plus t square and cos x is equal to 1 minus t square upon 1 plus t square. Okay. So check it the option. 120 का आंसर है 1 by 2 root 3. 1 by 2 root 3 में ऑप्शन डी है. हाँ 1
1/2√3, 3√2 का 3√2 कहाँ से आया? 2 + 1 तो 3 है। √3 से डिवाइड करने के बाद ऐसा आंसर बन सकता है 1 + tan x? नो, ये तो गड़बड़ है यहाँ पर। 1/√3, √3 से डिवाइड करने 1 प्लस, करेक्ट आंसर ये तो चेक करो। दिस इज 120। नाउ 121, अब देखो 121, ऑप्शन इज करेक्ट, आंसर इज करेक्ट of 120. Now let us see the 121. MCQ number 121. Integration sin x divided by sin x minus a minus cos x divided by cos x minus a dx. So this is MCQ number 121. डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, दैट इज बेटर। साइन इनटू दिस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस ए माइनस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय, दिस इज सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसका और एक टेक्निक है सॉल्व करने का, यहाँ पर -a + a करो, -a + a करो, कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला करो, दैट इज आल्सो वन ऑफ द मेथड। बट यहाँ पर क्लियरली अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यू विल गेट द सिंपल कंपाउंड एंगल फॉर्मूला, दैट इज अ sin a - b, sin a cos b minus cos a sin b, sin a cos b minus cos a sin b, this is sin a minus b, sin x minus x minus minus plus a divided by sin x minus a into cos x minus a। सो यहाँ से क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, प्लस x माइनस x कैंसर, 2 साइन ए कॉन्स्टेंट टर्म टेकिंग आउटसाइड, इट इज 1/2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा साइन 2 इंटू ब्रैकेट x माइनस ए। सो 2 साइन ए, ये इज अ कॉन्स्टेंट, इट इज अ रियल आर्बिट्री कॉन्स्टेंट साइन ए, 1/, साइन इज कोसेक, कोसेक 2 इंटू x माइनस ए। Integration of cosec, integration of cosec is log of tan x by 2, tan theta by 2। cosec थीटा का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला log of tan theta by 2, this is theta angle 2 into x minus a by 2, this 2 and 2 cancel, this is the answer। try to check it in option। सो 121 का ऑप्शन देखो क्या है, बी है। सो दिस इज द ऑप्शन नंबर बी। ओके, सो नाउ 122 बैक टू बैक एग्जाम्पल लेंगे, कुछ और एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। आई विल सॉल्व 1 by 1 एंड एक्सप्लेन ईच एंड एवरी कंसेप्ट। ओके, सो 122 वेरी वेल नोन एग्जाम्पल, x³ इंटू ब्रैकेट 1 minus x dx, सिंपल एडजस्टमेंट, -x³ करो प्लस x³ करो, divided by x³ into 1 minus x, x³ into 1 minus x, separate divide at a time। so a³ minus b³, a minus b, a square plus ab plus b square, x³ cancel, divided by x³ into 1 minus x plus 1/1 minus x dx। so कैलकुलेशन में लिखने में बहुत स्टेप होना, स्पीड होना जरूरी है। MST सीट लेवल के एग्जाम कैसे होते हैं, सामने सिस्टम होते हैं, कंप्यूटर सिस्टम, वहाँ पर हर एक क्वेश्चन आता है, उसको नेक्स्ट करना है। अगर आपको आया तो नेक्स्ट करना है, नहीं तो विदाउट क्लिक आप नेक्स्ट करते जा सकते हैं। जब जो जिसका आपको कॉन्फिडेंस है उसी ऑप्शन को आपको क्लिक करना है, टिक करना है। ओके, नहीं तो आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। ओके, सो साइमल्टेनियस यू हैव टू सॉल्व द ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑन द पेपर विच इज बिलोंग्स टू यू ऑन द टेबल। ओके,
सो ये कैंसिल, 1 अपॉन एक्स क्यूब एक्स टू द पावर माइनस 3, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 बाय एक्स, सो प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स डी एक्स, एक्स टू द पावर माइनस 3 का इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर माइनस 2 बाय माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स minus log of 1 minus x. Why minus? Because in coefficient of x is minus 1, that's why it is minus. So यही आंसर है. सिंप्लीफिकेशन है कि यहाँ पर? यस, सिंप्लीफिकेशन है. सो 2x स्क्वायर इज द एलसीएम, माइनस साइन कॉमन, 1 माइनस 2x प्लस लॉग ऑफ x अपॉन 1 माइनस एक्स. लॉग m माइनस लॉग n इज लॉग m बाई n. सो देखो ये ऑप्शन रहेगा, कहाँ है? यहाँ 1 माइनस 2x. सो माइनस 2x माइनस 1, माइनस साइन कॉमन लेने के बाद यहाँ पर प्लस बनेगा, माइनस साइन कॉमन ले 1 प्लस 2x. सो आई थिंक ऑप्शन इज ए. सो दिस इज द ए ऑप्शन. सॉल्व करते टाइम आपको फोकस भी करना है कि ऑप्शन क्या क्या है. सो उसी टाइप से उसको सिंप्लीफाई करना है. ओके, इंटीग्रेशन तो कॉन्फिडेंस लेवल आपकी हाई होना चाहिए, बिकॉज 122 एग्जाम्पल्स कंप्लीटेड एंड एवरीथिंग इज डिफरेंट. अब तक एक भी एग्जाम्पल रिपीट नहीं हुआ है. जो डिफरेंशिएशन में और एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव में कुछ एग्जाम्पल रिपीट हुए थे, 2-4 एग्जाम्पल्स, बट यहाँ पर मैंने वो इम्प्रूवमेंट किया है. एक भी एग्जाम्पल अब तक तो नहीं हुआ, एक आध बार हो भी सकता है. ओके, सो दिस इज द 122. Now 123 and 124. So now next 123, MCQ number 123. 2x square plus a square divided by x square into bracket x square plus a square. कोई सब्स्टिट्यूशन करने की जरूरत नहीं, जस्ट एडजस्टमेंट करना है. सिंगल और 2 स्टेप का एग्जाम्पल है. ये 2x स्क्वायर को x स्क्वायर करो, ये प्लस a स्क्वायर एज इट इज, x स्क्वायर को x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर किया, बस डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और सेपरेट डिवाइड भी करो, x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, x स्क्वायर. 2x स्क्वायर को x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, दिस फैक्टर कैंसल, दिस x स्क्वायर कैंसल, 1 अपॉन x स्क्वायर x टू द पावर माइनस 2, x to the power minus 2 का इंटीग्रेशन x to the power minus 1 upon minus 1. So we write directly minus 1 by x. So this is tan inverse 1 by tan inverse of x by. So this is the answer minus 1 by x. So I think option is C. चेक करो, C ऑप्शन. एक ही स्टेप पे, लेकिन हर जगह पर सब्स्टिट्यूशन नहीं, कुछ लॉजिक लगाना है, कुछ ऐसा करो कि जो विद इन 1-2 स्टेप में वो सोल्यूशन आना चाहिए. ओके, नाउ 124, MCQ नंबर 124, x अपॉन 1 प्लस एक्स रेस टू 4 है. सो एक्स रेस टू 4 को एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड. सो दिस विल बी, इसको हम t पुट करेंगे, द डेरिवेटिव इज 2x dx dt डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर. सो आंसर 1 बाय 2 tan इनवर्स t मीन्स x स्क्वायर, ये उसका आंसर. 1 बाय 2 tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस c. ओके, सो x रेस टू 4 को x स्क्वायर होल स्क्वायर, x स्क्वायर इज इक्वल टू t पुट का, इसका डेरिवेटिव 2x dx होता है. सो उसके जगह पर dt रखा, 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स t मीन्स व्हाट, x स्क्वायर. सो जंप करना है स्टेप बस. सो दिस इज द इंटीग्रेशन. ओके, सो नाउ आफ्टर 123 124 लेट्स स्टार्ट द 125 एंड 126.
Okay, so let's see the next MCQ 125. Okay, so what is 125? It's not a common example. E raised to 2x plus e raised to minus 2x divided by e raised to x plus e raised to minus x dx. By look it is a सिंपल एग्जाम्पल, ऐसा लगता है कुछ पुट करेंगे कुछ डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन ऐसा एग्जाम्पल नहीं है. इट्स एक्चुअली ई रेस टू 2x का मीनिंग क्या होता है? ई रेस टू एक्स होल स्क्वायर. ई रेस टू माइनस 2x का मीनिंग क्या होता है? ई रेस टू माइनस एक्स होल स्क्वायर. सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab. सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की इसकी एक सिमिलर आइडेंटिटी सिमेट्रिक फॉर्म है ए प्लस बी होल स्क्वायर minus 2ab. So e raised to x whole square plus e raised to minus x whole square को हम ऐसे लिख सकते हैं e raised to x plus e raised to x minus x whole square minus 2e raised to x into e raised to minus x plus x minus x addition 0 हो जाएंगे, e raised to 0 is 1. So this is only minus 2. So we can replace this in the numerator. So this is I is equal to e raised to x plus e raised to minus x whole square minus 2 divided by e raised to x plus e raised to minus x dx. इट इज़ वेरी क्लियर. हम न्यूमरेटर जगह पे ऐसे लिख सकते हैं. एक्चुअली e raised to 2x का मीनिंग क्या है? e raised to x होल स्क्वायर. e raised to minus 2x का मीनिंग क्या है? e raised to minus x होल स्क्वायर, बिकॉज दैट विल बी m into n. a to the power m raised to n is m into n. e raised to m into n. तो पावर एंड इंडाइसेस का रूल है वो. सेपरेट डिवाइड करेंगे, एक फैक्टर कट हो जाएगा. e raised to x plus e raised to minus x minus 2 outside 1 upon e raised to x plus e raised to minus x dx. So integration of e raised to x is e raised to x. e raised to minus x का minus e raised to minus x minus 2 e raised to x 1 upon e raised to x. ये तो सिंपल है. इसको निगेटिव को पॉजिटिव पावर करो, ये एज इट इज माइनस 2 e raised to x into e raised to x e raised to x plus 1 होल स्क्वायर. ये आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये ऊपर जाएगा e raised to x dx. इसका डेरिवेटिव ये है. सो पुट करना e raised to x is equal to t, but I will write directly tan inverse of e raised to x plus c. ये आंसर 1 upon 1 plus t square का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या है? tan inverse t. सो आंसर ऑफ दिस e raised to x minus e raised to minus x minus 2 times tan inverse of e raised to x. सो ये ऑप्शन ए बन रहा है यहाँ पर. दिस इज द ऑप्शन ए ऑफ 125. ओके, इज इट क्लियर? सो वेरी सिंपल. ये जो स्टार्ट है वो आपको मिलना चाहिए. हर एग्जाम्पल सॉल्व करते टाइम आपको एक गुड स्टार्ट मिलना चाहिए. ये स्टार्ट मिल गया तो आपको आंसर करेक्ट आ जाएगा. ओके, सो 126 वेरी डिफरेंट एग्जाम्पल. इट्स नॉट कॉमन. in is equal to cos raised to nx dx. in is equal to cos raised to nx dx. और वहाँ पर कुछ फाइंड करना है n प्लस 1 इंटू in प्लस 1. देखो एग्जाम्पल में माइनस n टाइम्स in माइनस 1. ओके, सो इसको हम बाय पार्ट से सॉल्व करेंगे. इसको स्प्लिट करेंगे. cos raised to n माइनस 1 x इंटू कॉस x. एक cos वहाँ से स्प्लिट किया dx. नाउ इट इज इंटीग्रेबल. दिस इज अ डिफरेंशिएबल. यू इनटू वी बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे. देखो बाय पार्ट्स क्या है? cos raised to n माइनस 1x cos x का इंटीग्रेशन sin x माइनस डेरिवेटिव ऑफ दिस n माइनस 1 इंटू cos raised to n माइनस 1 माइनस 1 x. द डेरिवेटिव ऑफ cos x is minus sin x. Integration of cos x is sin x dx. f of x raised to n into f of x raised to n minus 1 into f dash of x. So this is same. Minus into minus plus. Sin into sin square. n minus 1 constant term outside. Cos raised to n minus 2x
into sin square x dx. Sin x into sin x sin square x, this minus into minus here plus, ये कांस्टेंट टर्म टेकिंग आउटसाइड, करते जाओ डेफिनेटली कुछ ना कुछ बनेगा, लेकिन ये स्टार्ट इम्पॉर्टेंट। और ऐसे एग्जाम्पल डायरेक्टली एग्जाम में आप सॉल्व नहीं कर सकते, इसकी एक बार कभी तो सॉल्व करना, इस टाइप एग्जाम्पल एक बार तो कभी सॉल्व करना होना चाहिए। सो दैट्स वाई प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर द एग्जामिनेशन। कुछ ऐसे एग्जाम्पल है यू कांट डायरेक्टली फेस इन द एग्जामिनेशन, ओके। सो वो कभी ना कभी पहले उस टाइप के एग्जाम्पल अगर आपने सॉल्व किए तभी वो लॉजिक आपका वहाँ पर क्लियर होगा, ओके। सो इस कॉस स्क्वायर एक्स को मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स करता हूँ। कॉस स्क्वायर एक्स इज 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। सो मल्टीप्लाई करो 1 को कॉस रेज टू एन एक्स dx। इसके जगह पर मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स रखा, इसको 1 को मल्टीप्लाई कर ये बन गया -2 और ये +2 सिर्फ n बन गया, राइट। सो दिस इज सेम n-1, this is in-2 minus this is in, so ये n-1 into in-2 minus n-1 into in, so left hand side is in, ये टर्म लेफ्ट में ले लो, in कॉमन निकालो एट अ टाइम। सो in अगर कॉमन लिया तो यहाँ पर बनेगा 1, यहाँ पर -n माइनस n-1, यहाँ पर प्लस बनेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। सो प्लस बनने के बाद यहाँ पर 1 प्लस n-1, ये लेफ्ट हैंड साइड में माइनस n-1 in-2 इज इक्वल टू दिस टर्म एज इट इज cos raised to n-1x into cos x. So this cancel, n into in minus n-1 into in-2 is equal to cos raised to n-1x into I think sin x, not cos x, sin x। ये टर्म राइट साइड में है, यहाँ पर है वो क्या टर्म है वो cos raised to n-1x into sin x, ओके। सो ये कुछ तो बन रहा है अपना आंसर, बट ऑप्शन में क्या है देखो, क्या फाइंड करना है, n+1 in+1 कि n की जगह पर in+1 रखो, पुट n इज इक्वल टू n+1, ये इम्पोर्टेंट, n की जगह पर n+1, n की जगह पर n+1, n+1 -1 कैंसल, n+1 -2 n-1, n की जगह पर n+1 cos raised to nx into sin x। आई थिंक यही क्वेश्चन होगा, n+1 in+1 minus n times in-1 is equal to sin x into cos raised to nx। सो देखो ऑप्शन बी बन रहा है। सो रिप्लेस पुट n इज इक्वल टू n+1, ये पुट करना है तभी ये इसमें कन्वर्ट होगा ऑप्शन में। वी कैन पुट n इज इक्वल टू n+1। कभी भी ऐसे एग्जाम्पल आपको किसी भी, बहुत रेयर ऑफ रेयर बुक में ऐसे एग्जाम्पल है, बहुत रेयर ऑफ रेयर, बट ये चैलेंजिंग एग्जाम्पल है इंटीग्रेशन का, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का ये एप्लीकेशन है। इसको इंटीग्रेशन एक्चुअल हाउ टू अप्लाई इट, सो दिस इज लाइक दिस। बट ऐसे एग्जाम्पल में एक भी एग्जाम्पल आपको टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा। इज इट क्लियर? सो दैट्स वाई इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQ, लाइक दिस MCQ। बहुत सारे MCQ ऐसे बुक में हैं, ओके। So this is the completion of 125 and 126. So let's start 127.
Okay, 127. After completion of 126, 127, look at this. What is a derivative of cos x? In the numerator, in the denominator 1 minus cos square x. So d by dx of cos x, it is a minus sin x under root 1 minus cos square x. Cos x is equal to t पुट करो, उसका डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स डी एक्स बन जाएगा. सो इट इज अ साइन इनवर्स ऑफ, नो नॉट साइन इनवर्स, 1 माइनस टी स्क्वायर है. सो लॉग बनेगा, लॉग ऑफ टी माइनस अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस सी. सो लॉग ऑफ टी is what? Cos x. 1 minus cos square x sin square x. Sin x. Cos x minus sin x ऐसा कुछ है क्या? Log of cos x minus sin x नहीं है. So इसको मैं और एक तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ. ये देखो, इसको ऐसा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं. What is derivative of cos x minus sin x? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स का रूट साइन एक्स कैंसिल, 1 का इंटीग्रेशन एक्स माइनस एक्स प्लस सी है. देखो हर एग्जाम्पल इतना कॉम्प्लिकेशन सब्स्टिट्यूशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या है? साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर रूट साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस वन का इंटीग्रेशन माइनस एक्स. ओके, सो 128 नाउ. व्हाट इज 128? 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x into bracket 1 plus x square dx. right? Yes, numerator expand करो, 1 plus x square minus 2x, a minus b whole square, a square minus 2ab plus b square. separate divide करो, x into 1 plus x square, x into 1 plus x square dx. so ये 1 plus x square cancel, x cancel. So it is 1 by x only dx minus 2 1 upon 1 plus x square only. Integrable log x minus 2 tan inverse x plus c. log x minus 2 tan inverse x plus c. ऑप्शन क्या है? बी है. ये ऑप्शन कौन सा था? 127 का डी ऑप्शन था. ओके, सो दिस इज 127 एंड 128. अब देखो 129 130, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है अकॉर्डिंग टू मी. सो 129 u dv प्लस v du रूट du इंटू v. सो इंटीग्रेशन साइन है, बट यहाँ पर x नहीं, विथ रिस्पेक्ट टू x नो नीड. यहाँ पर dx से डिवाइड करो, dx से मल्टीप्लाई करो. मीन्स ऐसा भी कर सकते बट वही कोई ज़रूरत नहीं है. नो नीड ऑफ दिस. व्हाट इज अ डेरिवेटिव ऑफ u v? u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ v. इट मीन्स ये f ऑफ x है, f डैश ऑफ x है. व्हाट इज आंसर? 2 रूट f ऑफ x प्लस c. वेरी सिंपल, 2 रूट u v प्लस c. सो ऑप्शन क्या है? b है. 129 का ऑप्शन क्या है? b. गॉट इट? आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द कंसेप्ट रिगार्डिंग दिस MCQs. ओके, ये जो टेक्निक वो आपको समझ में आना चाहिए. ना 130, देखो 130 डिफरेंट है, यही टाइप का बट थोड़ा अलग लॉजिक है. v du माइनस u dv डिवाइडेड बाय u स्क्वायर v स्क्वायर. ये dx नहीं ज़रूरत भी नहीं है. ये जो है v इंटू du, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव v अपॉन v स्क्वायर है. तो हम क्या करेंगे उसको? देखो v स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, v du माइनस u dv डिवाइडेड बाय v स्क्वायर. इन डिनोमिनेटर वी कैन डिवाइड बाय v स्क्वायर बाय u स्क्वायर बाय v स्क्वायर प्लस 1. सो इट्स u बाय v होल स्क्वायर. u बाय v का ये डेरिवेटिव है.
we can put u by v is equal to t. What is derivative of u by v? v into derivative of u minus u into derivative of v upon v square. मैंने डिवाइड किया v स्क्वायर से y, बिकॉज ये जो फॉर्मूला है ये जो u by v का है, it becomes 1 upon t square plus 1 dt. So answer is tan inverse t. t means u by v प्लस सी, ये आंसर. देखो दो ही स्टेप में है, बट इमीडिएटली आपको क्लिक होना चाहिए कि ये ऐसा है, इससे हो सकता है. इसके लिए सिर्फ आपके पास 10-20 सेकंड होते हैं सोचने के लिए, बाकी वर्किंग के लिए तो 1 मिनट 1.5 मिनट 2 मिनट भी लग सकते हैं. लेकिन सोचने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं होता आपके पास. सो दिस इज द 130 का ऑप्शन क्या है? सी है. ओके, सो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ 130 MCQs. नाउ विल टेक मोर. नाउ 131. देखो MCQ 131 क्या है? a⁴ माइनस x⁴ डिवाइडेड बाय थिंग a माइनस एक्स. सिंपल एग्जाम्पल है, बहुत कुछ डिफिकल्ट नहीं. a⁴ को a² होल स्क्वायर करेंगे, x² को x² होल स्क्वायर करेंगे. a² माइनस b² का फॉर्मूला a माइनस बी a प्लस बी डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स. अगेन a² माइनस x² का फॉर्मूला क्या? a माइनस एक्स a प्लस एक्स. सो दिस इज एज इट इज a² प्लस x² डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स. ये फैक्टर कट. अब हमें ऑप्शन पे फोकस करना पड़ेगा. a से मल्टीप्लाई करो a³ ax² प्लस a² x प्लस x³. बस इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है विथ रिस्पेक्ट टू x. कांस्टेंट टर्म विथ रिस्पेक्ट टू x, x³ बाय 3 x² बाय 2 x⁴ बाय 4 प्लस सी. सिर्फ इसको चेक करना है. x⁴ बाय 4 a x³ बाय 3 a² x² बाय 2 a³ x. सो बी ऑप्शन देखो, यही बनेगा आपका. So this is the 131. Okay. Now 132. 132 शायद हमारा अभी एक आंसर एग्जाम्पल हुआ था, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन डिफरेंट है. सेम क्वेश्चन आया नहीं है, बट राइट साइड इज डिफरेंट. सो मैं उसको आपको 120 और 132 वेरी सिमिलर. जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट, यू विल गेट द आंसर. दैट इज 132. नाउ आई विल सॉल्व 133. 132 और 120 एग्जाम्पल क्वेश्चन सेम है, बट वहाँ का राइट साइड डिफरेंट है, ऑप्शन भी डिफरेंट है. सो आप ट्राई करो, बिकॉज मैंने वो एग्जाम्पल आपको सॉल्व करके दिया है. 133 1 अपॉन x² इंटू e टू द पावर 1 बाय x. e टू द पावर 1 बाय x को मैं ऊपर लेता हूँ, e टू द पावर माइनस 1 a बाय x. a बाय x को माइनस होगा, ये 1 बाय x² एज इट इज dx. इस टर्म को मैं t पुट करता हूँ, माइनस a बाय एक्स इज इक्वल टू t. माइनस 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 बाय x², माइनस 1 बाय एक्स का प्लस 1 बाय x² प्लस 1 बाय x² dx इज इक्वल टू dt. a एज इट इज. इस a को मैं राइट साइड में 1 बाय a करता हूँ, कांस्टेंट टर्म है. सो दिस इज what 1 by a dt e raised to t का इंटीग्रेशन e raised to t प्लस c. ये आंसर 1 by e raised to माइनस a by x प्लस c. सो ऑप्शन सी देखो सेम बनेगा. सो दिस इज 133. सो क्या पुट करना है? a by x t पुट करना है, बिकॉज 1 by x का डेरिवेटिव माइनस 1 by x² होता है. सो ये ऊपर ले लो, माइनस a बाई एक्स. माइनस a बाई एक्स को t पुट करो. जो मैं यहाँ पर स्टेप जंप करता हूँ ना, वो आप सीख लो, वो ऐसा आपको करना आना चाहिए.
तभी आपका MCQ का आंसर विद इन टाइम सोल्व हो जाएगा. इज इट क्लियर? सो दिस इज द 133. नाउ 134. हर एक एग्जाम्पल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, डिक्टेट कर रहा हूँ. सिर्फ आपको कॉपी करना है सॉल्यूशन और अंडरस्टैंड करना है. हर MCQ का सॉल्यूशन आपकी नोटबुक में होना चाहिए. 250 MCQ देने वाला हो. सो वन ऑफ द एक्सट्रीमली मोस्ट important topic of the syllabus MST CET, that is indefinite integration. near about 5 questions तो होते ही हैं. so 134 integration x minus x cube raised to 1 by 3 divided by x to the power 4. taking x cube common from numerator, x upon x cube, x अपॉन एक्स क्यूब कितना है? एक्स स्क्वायर बनेगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बनेगा -1 रेस टू 1 बाय 3 एक्स रेस टू 4. एक्स क्यूब रेस टू 1 बाय 3 इज एक्स. एक्स माइनस एक्स क्यूब. एक्स क्यूब कॉमन लिया मैंने. सो एक्स क्यूब कॉमन लेने के बाद एक्स अपॉन एक्स क्यूब इज 1 बाय एक्स स्क्वायर. प्रोसेस तो करेक्ट है. -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, नो 1 बाय एक्स स्क्वायर, 1 बाय एक्स स्क्वायर -1 रेस्ट टू 1 बाय 3 एक्स रेस्ट 4. एक्स एक्स कैंसल, क्यूब हो जाएगा. सो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर -1 होल रेस्ट 1 बाय 3 x cube dx. so we can put this is equal to t. 1 by x square -1 is equal to t. x to the power -2 into x to the power -3 is equal to dt by dx. so 1 upon x cube dx is equal to -1 by 2 dt. so इसकी जगह पर ये जो है we can write 1 -1 by 2. -1 by 2 हम बाहर लेंगे, कांस्टेंट है, dt रखेंगे. इट्स t रेस टू 1 by 3. सो t रेस टू 1 by 3 का इंटीग्रेशन t रेस टू 1 by 3 plus 1 by 3 plus 1 4 by 3 upon 4 by 3 3 by 4. so -3 by 8 -3 by 8 1 upon x square -1 रेस टू 4 बाय 3 प्लस c -3 बाय 8. ये ऑप्शन बी ऑप्शन, इट्स बी. बस आपको सॉल्व करना है. ये पुट किया मैंने, ये सब्स्टिट्यूशन की प्रोसेस है. तो सबसे इम्पोर्टेंट एक्स क्यूब कॉमन ले लो. सो एक्स क्यूब रेस टू 1 बाय 3 एक्स बनेगा. एक्स एक्स कैंसिल, एक्स क्यूब रहेगा नीचे. 1 बाय एक्स क्यूब डी एक्स, ये 1 बाय एक्स क्यूब डी एक्स माइनस हाफ डी टी बन जाएगा. वेन वी पुट दिस पार्ट इज इक्वल टू टी, you will get the solution, that is the B option of 134. so okay, so next 135. so this is the last example of today's worksheet, today's video lecture, that is 135. in 135 cos x into root cos 2x है. cos x into root cos 2x. ऑप्शन पे फोकस करना कि आंसर क्या आ सकता है. ओके 135 नाउ. ए cos x, ऐसे बहुत एग्जाम्पल मैंने लिए और यही आपको फाइनल एग्जाम में दिखाई देंगे. आई हैव लॉट्स ऑफ कॉन्फिडेंस फॉर पर्टिकुलर ऑल सच टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स. सो ये cos x, cos 2x means cos square x minus sin square x. cos square x minus sin square x. cos square x बाहर ले लो, cos x बन जाएगा. cos x into cos x cos square x. cos square डिवाइड करो 1 minus tan square x dx. 1 by cos square ऊपर sec square x अंडर रूट 1 minus tan square x. tan x का डेरिवेटिव है. tan x इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स बनेगा. ये साइन इनवर्स t
Sin inverse t plus c. Put tan x is equal to t, 1 minus t square, 1 upon root 1 minus t square is sin inverse t, and sin inverse of tan x plus c, ये उसका आंसर. सबसे इम्पोर्टेंट cos टू x का ये मल्टीपल एंगल फॉर्मूला, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x. ये cos स्क्वायर x स्क्वायर रूट के बाहर आने के बाद cos बन जाएगा, cos इंटू cos स्क्वायर x. सो कॉमन लेने के बाद साइन स्क्वायर बाय cos स्क्वायर कितना बनेगा, tan स्क्वायर x. 1 बाय cos स्क्वायर x sec स्क्वायर x, रूट 1 माइनस tan स्क्वायर x into sec square x dx. Put tan x is equal to t, sec square x dx is dt upon root 1 minus t square, sin inverse t plus c, sin inverse of cos x, sorry sin inverse of tan x plus c. So option क्या है, D. Okay, so this is the completion of 20 MCQs. All right, so this is sufficient. 20 MCQs means sufficient for one lecture. Okay, I hope you understand all this. 116 to 135 means 20 example complete हुए. Okay, so we'll stop here. So for more solutions of MCQ, stay tuned on this YouTube channel Math Mentor. So we'll stop here. Thank you very much. Okay.